Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. Today I am here with all of you with another solved worksheet for practice of SQL commands that will be asked under Unit 3 DBMS of Class 10th IT syllabus. I've already uploaded two worksheets for the same practice based on board pattern. I hope you have been through those worksheets. Just in case you have not, please go through them. I'll provide their links in the description box. So without wasting any time, let us start with the worksheet right away. So for this worksheet again, as I did in worksheet 1 and 2, I've taken a sample table with already created records. What we have to do, we have to write commands based on these on this sample table, and in this worksheet I'll give you some practice on usage of logical operators as well, and we'll take up queries that will be slightly different from the ones that we did earlier. So let us proceed. See, we have been given table employee, and as you can all see, table employee has 7 fields and 5 records. Fine, an ID column will be the primary key for this table because every employee will be having a unique value for the ID column, and that is going to distinguish one employee record from another employee record. So, just in case you're asked what is the primary key for this employee table and why would you select this as the primary key, you would say it's ID because its value will be unique for every employee whose record is stored in the table. So let us start with the questions. So write command to create table employee. So again, create table is a DDL command, and we write create table name of the table name, the create table employee, and in brackets I'm going to write all the column definitions. So the first column is ID, and we can make out that it is of type integer. Its data type would be integer because 1 2 3 4 5 is there, and I want to designate it as the primary key of my table, so I have written primary key after the data type. Put a comma, write the next field, that's name, and name would be varchar type. I've taken the size 30. Age obviously would be integer, and we can make it out from the data also, and that is why we have written age with data type integer. Job would be varchar, and for varchar I've chosen size 20. Job column के लिए I've chosen size 20. City again would be varchar and size 20. फाइन. सैलरी इज इंटरजर. ठीक है, सैलरी आप देख रहे हो किस तरह से गिवन है. सैलरी वुड बी इंटरजर, एंड फोन नंबर कॉलम को आई हैव टेकन एज varchar टाइप जस्ट बिकॉज फोन नंबर्स जो है वो इंटीजर की लेंथ को क्रॉस कर सकता है. 10 डिजिट होता है. समटाइम्स यू इवन राइट इट विद द कोड, एंड you also put a hyphen between the code and the number. So for any type of phone number, if you are accepting it as an alphanumeric स्ट्रिंग, तो इट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम फोन का डेटा टाइप varchar ले लेते हैं और साइज उसका 20 रख दिया. ठीक है, तो दिस क्रिएट्स आवर टेबल. वील पुट अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द कमांड. सो दिस इज वी आर गोइंग टू बी थ्रू विद क्रिएट टेबल कमांड दिस वेज. अब हम देखते हैं राइट कमांड टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन एम्प्लॉय टेबल विद द फॉलोइंग डिटेल्स, एंड द डिटेल्स हैव बीन गिवन टू मी फॉर एवरी कॉलम. सी, आई टोल्ड यू इन वर्कशीट 2 ऑल्सो, समटाइम्स हमें ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा है 5 रिकॉर्ड्स को, एंड द क्वेश्चन में पेपर में कम अप विद सच अ क्वेश्चन कि आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कीजिए एंड द डेटा इज प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. सो आज उस पैटर्न पे लेते हैं. तो हमने अज्यूम करते हुए कि 5 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हैं, ये 6th न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द टेबल, एंड यू ऑल नो दैट इंसर्ट इज अ DML कमांड. वैल्यूज लिखोगे और उसके बाद आप वैल्यूज को for every column you will provide the values in the brackets. Each value will be separated by comma, and values of type varchar will be enclosed in single quotes. So ID 6, name Shivam Sahai, age 42, job salesman, Greater Noida, city 40,000 salary, and this is the phone number. You'll put a semicolon after you finish the command. This is going to insert a new record into your table employee. ठीक, अब हम देखते हैं बेसिक हमारा डिस्प्ले कमांड है सिलेक्ट
write command to display all records in the stored in employee table. That's the most basic display command, and I have told you अब तो यहाँ 7 columns हैं. It's not feasible कि आप 7 के 7 columns select के बाद लिखो, तो टाइपो एरर्स भी हो सकती हैं. एंड इट्स बेटर कि जब कॉलम्स सारे ही इंक्लूड करने हैं, सो वी कैन राइट एस्ट्रिक एंड आई सिंपली राइट माई क्वेरी इन अ शॉर्ट एंड स्वीट मैनर. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी एवरी रिकॉर्ड विद ऑल द कॉलम्स. फाइन. अब अगली क्वेरी आती है, सेलेक्ट राइट कमांड टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हैविंग ID 2. तो आप क्या लिखोगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय. नाउ यू विल पुट अ कंडीशन वेयर क्लॉज वेयर वैल्यू ऑफ ID कॉलम इज इक्वल टू 2. सो ये आपका क्या कर देगा? ID कॉलम की वैल्यू जहां 2 होगी वो वैल्यू आपको वो वाले रिकॉर्ड्स आपको दिखा देगा. और जब भी आप प्राइमरी की के बेसिस पर रिकॉर्ड फेच करते हो, सो यू गेट एग्जैक्टली 1 रिकॉर्ड. सो ID की वैल्यू जहां 2 है, उस एम्प्लॉय का सिंगल रिकॉर्ड आपके लिए डिस्प्ले हो जाएगा. Next command says write command to display the details of all the clerks stored in employee table. Now we have how many clerks? Let's see. We have 2 clerks in this table. So 2 records इसमें आएंगे. Write command to display हमने लिखा select asterisk from employee where जॉब कॉलम का नाम है इज इक्वल टू क्लर्क. क्लर्क को सिंगल कोट्स में देना है एंड यू हैव टू गिव इट इन द सेम मैनर. एल क्योंकि केस सेंसिटिव होगा तो उसी तरह से देना है जिस तरीके से इट इज बीइंग शोन इन द टेबल. सो सी कैपिटल रखते हुए क्लर्क. अब आता है कमांड राइट कमांड टू डिस्प्ले ID नेम सिटी एंड फोन नंबर ऑफ द मैनेजर. देखो जब आपसे पूछते हैं डिस्प्ले द डिटेल्स, दैट मीन्स वी हैव टू शो ऑल द कॉलम्स. अब इस क्वेरी में क्या चेंज आया? हमने लिखा डिस्प्ले दी ID नेम सिटी एंड फोन नंबर. ठीक है, तो हमें सारे कॉलम्स नहीं देखने. आउट ऑफ द 7 कॉलम्स गिवन टू अस वी हैव टू ओनली सी 4 कॉलम्स. सो हम सिलेक्ट के आगे एक एक करके कॉलम देंगे. सेलेक्ट ID कॉमा नेम कॉमा सिटी कॉमा फोन फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर. क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? जहां ID नेम सिटी फोन नंबर किसका दिखाया जाए? मैनेजर का. सो आपके 5 कॉलम्स यूज हो रहे हैं, 4 फॉर डिस्प्ले एंड 1 फॉर पुटिंग द कंडीशन. सो जॉब की वैल्यू जहां मैनेजर है उस रिकॉर्ड के लिए आपको ये 4 कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं. सो अगर ये क्वेश्चन होता डिटेल्स ऑफ मैनेजर तो आप यहाँ एस्ट्रिक लिखते हैं बिकॉज डिटेल्स नहीं है, ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स हैव बीन आस्क्ड. सो आप उन कॉलम्स के नेम लिखोगे कॉमा से सेपरेट करके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कमांड टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हुज एज इज अबव 30 years. अब अगेन 2 कॉलम्स यूज होंगे. एक तो डिस्प्ले के लिए वी आर यूजिंग नेम कॉलम और कंडीशन देने के लिए वेयर के साथ वी आर यूजिंग एज कॉलम. सो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है. डिस्प्ले नेम, सो आपने क्या लिखा? सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय. किसका? जहां पर वेयर वैल्यू ऑफ एज कॉलम इज ग्रेटर देन 30. सो ऑल द एम्प्लॉइज हु आर एज्ड अबव 30 their names will be shown as the output of this query. ठीक है. सो डिस्प्ले डिटेल्स और डिस्प्ले कॉलम नेम्स पर आप फोकस कीजिएगा. वट एवर इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू इन द क्वेश्चन, डू गो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. अब आया राइट द कमांड टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी. अब डिटेल्स आ गया. डिटेल्स का मतलब यू हैव टू यूज एस्ट्रिक. सो सेलेक्ट एस्ट्रिक, सेलेक्ट फिर एक DML कमांड है फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक, सारे रिकॉर्ड्स दिखाने लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी में, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट सैलरी के बेसिस पर रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है. सो ऑर्डर बाय कौन से कॉलम पे ऑर्डर करना है? सैलरी. एंड डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है. डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर होता है असेंडिंग, सो डिसेंडिंग हमें लिखना पड़ता है. सो आई एम टू राइट DESC. आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे, टेबल में चेंजेस नहीं होते, याद रखना. Write command to display the details of employees in ascending order of job. So select asterisk from employee, order by. किस पर अब सॉर्टिंग करनी है हमें? जॉब. आप केवल जॉब लिख के छोड़ सकते थे, डिफॉल्ट ऑर्डर असेंडिंग ही होता है. या आप ESC लगा सकते हो. दैट विल शो यू द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन जॉब वाइज असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. सो ऑर्डर बाय में असेंडिंग डिसेंडिंग आपको ध्यान रखना है और किस कॉलम पर ऑर्डर करना है. दैट नेम फॉल्स आफ्टर is written after order by. अब आता है write command to display the job and age of employee whose name is Priyansh Goyal. Again 2 कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, जॉब एंड एज. तो हमने लिखा
सेलेक्ट जॉब एज फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर, कहाँ पर, जहाँ एम्प्लॉय नेम प्रियांश गोयल है. सो विल राइट सेलेक्ट जॉब एज फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज प्रियांश गोयल. अब प्रियांश गोयल मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा प्रियांश गोयल, ये रहा. तो इसकी जॉब इज मैनेजर एंड हिज एज इज 40. तो आउटपुट आपका क्या आएगा, मैनेजर 40. ठीक है, तो जहाँ पर आपके एम्प्लॉय का नाम प्रियांश गोयल है, उसका जॉब और एज डिस्प्ले हो जाएगा. प्रियांश गोयल वैसे ही लिखना है जैसा डेटा में गिवन है. नाउ वी राइट. अब देखो, मैंने आपको सेलेक्ट कमांड के अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप कॉलम्स पर सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हो, न्यूमेरिक कॉलम्स पर. सो उस पर बेस्ड एक ये पार्ट है. राइट कमांड टू डिस्प्ले द नेम्स एंड एनुअल सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज. ध्यान रखना, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. सो नेम दिखाना है, नेम, और सैलरी कॉलम आपको पता है टेबल में गिवन है. एनुअल सैलरी हम कैसे निकालेंगे, दैट इज द मंथली सैलरी विच इज गिवन टू अस. सो इफ आई मल्टीप्लाई इट बाई 12 आई गेट द एनुअल सैलरी. सो आई राइट सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी इंटू 12. सैलरी कॉलम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो आपको एम्प्लॉय टेबल में से दिखाना है, सारे रिकॉर्ड्स को दिखाना है ना, ऑल एम्प्लॉयज. सो राइट सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12 फ्रॉम एम्प्लॉय. अब इसमें जो आपके आउटपुट होता है उसमें कॉलम नेम हेडिंग्स वही आती हैं जो आपने सेलेक्ट के आगे दी हैं. ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप अगर कॉलम हेडिंग्स को चेंज करना चाहो, एलियास नेम्स देना चाहो, तो कैसे देखते हो, सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12. हेडिंग में सैलरी इंटू 12 ना दिखकर हमें दिखाना है एनुअल सैलरी. उस कॉलम को एक नई हेडिंग देनी है, एक मीनिंगफुल हेडिंग, एनुअल सैलरी. सो मैं सैलरी इंटू 12 जैसे ही दूंगी, आई पुट अ स्पेस ओवर हियर एंड इन डबल कोट्स आई विल राइट एनुअल सैलरी. ये जरूरी नहीं आप एग्जाम में ऐसा करो, अगर आपसे पूछा ना जाए तो सिंपल तरीका यही है कि नेम लिखा और उसके आगे कैलकुलेटेड कॉलम लिखा और आपने टेबल का नाम दे दिया. लेकिन अगर आप इसको ट्राई करके देखना चाहते हो, आप मेरे पार्ट 1 सेलेक्ट वीडियो में जरूर देखना. सो आप यहाँ पे डबल कोट्स में एनुअल सैलरी दे सकते हो. दिस इज गोइंग टू बी द कॉलम हेडिंग फॉर द कैलकुलेटेड कॉलम which will be calculated as salary multiplied by 12. अब ये जो कॉलम हेडिंग दी जाती है, डबल कोटेशन मार्क्स में दी जाती है, आप उसको कैसे देते हो, दो तरीका है. कॉलम का कैलकुलेटेड कॉलम लिखा आपने, उसके बाद स्पेस देके कॉलम एलियास दे दिया, या कैलकुलेटेड कॉलम लिखा, उसके बाद एक एज कीवर्ड लगाया और उसके बाद कॉलम एलियास दे दिया. सो ऑल दीज 3 मेथड्स वुड बी करेक्ट, कंसिडर्ड करेक्ट. सो सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12 एज द हेडिंग वुड बी एनुअल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई. ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको केयरफुली समझना. अब आता है राइट कमांड टू डिस्प्ले द नेम एंड हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मंथली सैलरीज फॉर ऑल एम्प्लॉयज. तो हाफ ऑफ सैलरी दिखाना है. सो आप क्या लिखोगे, नेम कॉमा सैलरी डिवाइड बाई, बेटा यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, सैलरी अपॉन 2. सो डजेंट मैटर, हम इसको यहाँ पर रुक जाओ, मैं इसको ठीक कर देती हूँ. यहाँ पर सैलरी अपॉन 2. ठीक, तो आपकी हाफ सैलरी यहाँ पर आ जाएगी, सैलरी अपॉन 2 फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना. जब आप लिखोगे सैलरी डिवाइड बाय 2 फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉयज की हाफ सैलरी आपको दिखा देगा. ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे एलियास दे सकते हो जैसे आपने फर्स्ट इसके प्रीवियस पार्ट में यानी कि के पार्ट में दिया है. ठीक, अब आते हैं एम पार्ट पर. राइट कमांड टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज बाय 1000. सो अब ये भी नए तरीके से कमांड है. तो एग्जिस्टिंग सैलरी में 1000 जोड़ना है, सबको 1000 का इंक्रीमेंट देना है. तो हमने क्या लिखा, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी. अपडेट के बाद टेबल का नाम, सेट के बाद कॉलम का नाम, इज इक्वल टू करंट सैलरी जो मेरी है. जैसे मुझे x एक वेरिएबल है जिसमें 5 है और x में 10 बढ़ाना है, तो मैं क्या लिखती हूँ, x इज इक्वल टू x प्लस 10. ठीक है ना, तो x की करंट वैल्यू में 10 जोड़कर वापस से x को असाइन हो जाएगा. वही हम कर रहे हैं, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 1000. तो ये क्या करेगा, करंट सैलरी में 1000 ऐड करके वापस से सैलरी कॉलम को अपडेट कर देगा. और क्योंकि हमने वेयर कंडीशन नहीं दी, तो सारे एम्प्लॉयज को 1000 का इंक्रीमेंट मिल जाएगा. समझ गए, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी कॉलम इज इक्वल टू करंट सैलरी प्लस 1000. ठीक, अब आता है राइट द कमांड टू इंक्रीज सैलरी ऑफ क्लर्क्स बाय 1000. सो अब कंडीशन लग,
अपडेट एम्प्लॉय, सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 1000, कहां पर, सबके लिए नहीं, वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, जहां जॉब की वैल्यू क्लर्क है वहां आप क्या करोगे, सैलरी को 1000 का इंक्रीमेंट दे दोगे। सो कंडीशनल अपडेट हो गया। नेक्स्ट कमांड ओ पार्ट, राइट कमांड टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय हैविंग एम्प्लॉय आईडी 1। सो एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए आपने फिर कंडीशन लगाई डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, जो नेक्स्ट पार्ट है पी पार्ट, उसमें कि डिलीट सारे रिकॉर्ड्स करने। सो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए सिंपलेस्ट आंसर इज डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। लेकिन ओ पार्ट कहता है सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 1 का रिकॉर्ड डिलीट करना। सो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। सो आईडी 1 जहां मैच होगा वो वाला रिकॉर्ड टेबल से हट जाएगा। ठीक है। क्यू पार्ट, राइट कमांड टू display the details of all employees whose age is between 25 and 30, both values included। तो 25 और 30 को इंक्लूड करते हुए इस रेंज के बीच के सारी एम्प्लॉय, इस जिन भी एम्प्लॉयज की एज इस रेंज में है उनके रिकॉर्ड्स दिखाइए। डिस्प्ले द डिटेल्स, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड एज लेस देन इक्वल टू 30। इसका मतलब आपने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया यहाँ पर एंड दो कंडीशंस जोड़ी हैं, एज की वैल्यू 25 और अबव है और एज की वैल्यू 30 या बिलो है। तो उस रेंज के आपने कंपाउंड कंडीशन बनाई, एक सिंगल कॉलम एज पर दो कंडीशंस दी, बीच में उसको ज्वाइन किससे किया, एंड ऑपरेटर से, और आपका ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा जहां दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, 25 और अबव होगा और 30 और बिलो होगा, वो रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। इसको देने का एक और तरीका भी होता है, बिटवीन एंड ऑपरेटर। ये आपके कोर्स में नहीं है बट आप देख सकते हो, उसको कमांड को ट्राई करके देखना। इसमें क्या होता है, हम एक कॉलम को जैसे हम यहाँ 2 बार लिख रहे हैं, एक पहली कंडीशन के साथ भी और दूसरी कंडीशन के साथ भी, लेकिन यहाँ हमें एक ही बार ही लिखना पड़ता है। वेयर एज, ऑपरेटर है बिटवीन के बाद आती है पहली वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 25, फिर लिखते हैं हम एंड, बिटवीन एंड ऑपरेटर कहते हैं। बिटवीन के बाद वी गिव द लोअर बाउंड एंड के बाद वी गिव द अपर बाउंड, एंड बोथ दीज, बिटवीन से लगता है ना, बिटवीन 10 एंड 20 से ये मत समझना कि 10 और 20 एक्सक्लूड होंगे, बिटवीन इंक्लूड्स द लोअर अपर बाउंड्स ऑल्सो। सो वेयर एज बिटवीन, एक ही बारी आपने कॉलम का नाम लिखा, फिर आपने लिखा बिटवीन 25 एंड 30। सो एज जहां पर 25 और 30 के बीच में 25 और 30 को इंक्लूड करते हुए लाई करेगी, वो रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक। अब आता है हमारा नेक्स्ट कमांड, आर पार्ट, राइट कमांड टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु आर आइदर क्लर्क्स और मैनेजर। तो अब यहाँ बेटा और ऑपरेटर यूज होगा। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब की वैल्यू क्लर्क है या जॉब की वैल्यू मैनेजर है। वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क और जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, केस सेंसिटिव है, सिंगल कोट्स में दोगे। तो जो भी एम्प्लॉयज जहां जॉब क्लर्क हो या मैनेजर हो, ये तो देखो एंड नहीं लग सकता ना, कोई क्लर्क और मैनेजर एक साथ तो नहीं हो सकता, या वो क्लर्क है या वो मैनेजर है, वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। बाकी जो और रिकॉर्ड्स हैं आपके, सेल्समैन हो गया या सीईओ हो गया, वो आपके डिस्प्ले नहीं होंगे। ठीक है। अब आता है एस पार्ट, राइट कमांड टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज बट फॉर क्लर्क्स। सो क्लर्क्स को छोड़ते हुए आपको दो वो रिकॉर्ड्स दिखाने हैं जहां क्लर्क्स नहीं है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब नॉट इक्वल टू, मैंने बताया था ना आपको वीडियो में भी, लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को कंबाइन करके लिखो, जहां जॉब क्लर्क नहीं है वो रिकॉर्ड्स दिखाइए। ठीक। या दूसरा तरीका है लॉजिकल नॉट, तो आपने कंडीशन लिखी जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, ये तो ट्रू है ना, जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, जहां नहीं है तो उससे पहले क्या लगा दिया, नॉट, वेयर नॉट जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। सो इन, चाहे आप इसमें रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करो, चाहे आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करो, आप दोनों से ही एक क्वेरी आपकी करेक्ट मानी जाएगी। वेयर नॉट जॉब, क्योंकि अगर आप नॉट हटा दोगे यहाँ से तो वो वाले रिकॉर्ड्स आएंगे जो क्लर्क के को, जहां जॉब की वैल्यू क्लर्क है। लेकिन अगर आपने यहाँ नॉट लगा दिया तो जहां जॉब की वैल्यू क्लर्क है, अपार्ट फ्रॉम दोज ऑल रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है। तो जहां कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है। फिर टी पार्ट, राइट कमांड टू डिस्प्ले द नेम एंड जॉब ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन 80,000। सो बिल्कुल सिंपल, डिस्प्ले आपको क्या क्या करना है, नेम और जॉब, किस किस के लिए,
फ्रॉम एम्प्लॉय, जहां पर सैलरी कॉलम की वैल्यू हु अर्न मोर देन 80,000, 80,000 कहां पर है बेटा? सैलरी कॉलम में, तो आपने लिखा वेयर सैलरी एक्सीड्स 80,000, सिर्फ उन एम्प्लॉयज के नेम्स और जॉब्स डिस्प्ले कर दीजिए। फाइन। Last part, write command to display the details of all employees who earn between 60,000 and 80,000, both values included. Simple, बिल्कुल वैसी करेंगे। Select asterisk from employee where salary greater than equal to 60,000 and salary less than equal to 80,000, क्योंकि included बोला है ना, तो मैंने greater than equal to less than equal to लिखा है। और and का मतलब क्या हुआ? ये रेंज बन गई, जहां पर सैलरी इस रेंज में लाई करेगी, यानी दोनों एंड्स मीट होने चाहिए। अगर 70,000 है वो ट्रू है, 90,000 मान लो सैलरी है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 60,000 से तो बड़ी है 90,000, लेकिन 80,000 उससे छोटा है। तो इसलिए आप को जहां दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी वही वाला आपको रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। सो जब भी रेंज बेस्ड कोई क्वेश्चन आए वहां एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाना। और बिटवीन एंड से भी करके देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, बिटवीन लिखा, बिटवीन के बाद पहली वैल्यू, लोअर बाउंड इज 60,000, फिर एंड लिखा, upper bound is 80,000, but between doesn't mean that 60,000 and 80,000 would be excluded, they will be included in the range. So this was about worksheet 3. I hope इसमें आपने कुछ नए तरीके के कमांड्स ट्राई करे। वर्कशीट 4 लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगी। आई प्रॉमिस यू चिल्ड्रन, अगर आप ये वर्कशीट्स अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद से भी फील होगा कि आप इन कमांड्स पर कमांड कर पाओगे। So now it's the time to command SQL commands. Fine. So do that and please give your feedback, and I'll eagerly wait for it. Your feedback and comments are very precious to me, and they motivate me to come up with something better in every upcoming video. So till we meet again, children, happy learning and lots of love and blessings. Thank you so much. God bless you.